Dear students, good morning to all of you. I hope you are all good and safe and doing good on your parts. Today we are going to start our next revision topic business risk ਤੇ previous lecture ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਓ ਆਪਾਂ objectives of business ਵਾਲਾ ਟੌਪਿਕ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ business risk ਟੌਪਿਕ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਦੇ characteristics ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਨੇ business ਜਿਹੜਾ ਰਿਸਕ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫੇਸ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ business ਨੂੰ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ business risk ਦਾ meaning ਸੋ business risk refers to possibilities मतलब chances of inadequate profits मतलब ਜਿਹੜੇ insufficient profits ਹੋਣ sufficient profits ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜਾਇਜ਼ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੋਣ ਜਿੰਨੇ ਕਿ ਬਣ ਸਕਦੇ ਆ ਜਿੰਨੇ ਕਿ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਮਿਲਦੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ sufficient profits ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ insufficient ਜਾਂ inadequate profits ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿੰਨਾ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਬਣਾ ਉਨਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਸੋ ਬਿਜ਼ਨਸ ਰਿਸਕ ਚਾਂਸਿਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਨਐਡੁਕੇਟ ਪ੍ਰੋਫਿਟਸ ਹੋਣ ਦੇ ਜਾਂ ਲੌਸਿਸ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਹਦੇ ਕਰਕੇ ਅਨਸਰਟੇਨਟੀਜ਼ ਕਰਕੇ ਅਨਸਰਟੇਨਟੀਜ਼ ਮਤਲਬ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਇਵੈਂਟਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੈਡਿਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਵੀ ਫਿਊਚਰ ਵਿੱਚ ਹੈਪਨਿੰਗਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਹੋ ਵੀ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅਨਸਰਟੇਨਟੀਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਬਿਜ਼ਨਸ ਰਿਸਕ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਕੀ ਆ ਬਿਜ਼ਨਸ ਰਿਸਕ ਚਾਂਸਿਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਨਐਡੁਕੇਟ ਪ੍ਰੋਫਿਟਸ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਲੌਸਿਸ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਅਨਸਰਟੇਨਟੀਜ਼ ਕਰਕੇ ਫਿਊਚਰ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬਿਜ਼ਨਸ ਰਿਸਕ ਦੈਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕਸ ਆਫ ਬਿਜ਼ਨਸ ਰਿਸਕ ਜਿਹੜਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਰਿਸਕ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਉਹਦੇ ਕੀ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕੀ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕਸ ਮਤਲਬ ਕੀ ਗੁਣ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸੋ ਆਪਾਂ ਨੇਚਰ ਜਾਂ ਗੁਣ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਰਿਸਕ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਮਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਰਿਸਕ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕਸ ਦੇ ਨੇਚਰਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਪਹਿਲਾ ਫੀਚਰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਰਿਸਕ ਦਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨਸਰਟੇਨਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਨਸਰਟੇਨਟੀ ਮਤਲਬ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਿਸ ਸਮੇਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਰਿਸਕ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਗੋਡ ਦੁਆਰਾ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਮੈਨ ਮੇਡ ਮਤਲਬ ਹਿਊਮਨ ਦੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਦੁਆਰਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਪੈਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਰਿਸਕ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਸਟ੍ਰਾਈਕਸ ਕਰਕੇ ਸਟ੍ਰਾਈਕਸ ਮਤਲਬ ਧਰਨੇ ਲਗਾ ਕੇ ਲੌਕਆਊਟਸ ਮਤਲਬ ਫੈਕਟਰੀ ਇੰਜਨ ਦੇ ਲਗਾ ਕੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਹੋ ਜਾਣੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਚੋਰੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਦੁਆਰਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਨਸਰਟੇਨਟੀਜ਼ ਨੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੋਡ ਦੁਆਰਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਅਨਸਰਟੇਨਟੀਜ਼ ਉਹ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਨੈਚੁਰਲ ਕਲੈਮਿਟੀਜ਼ ਠੀਕ ਹੈ ਨੈਚੁਰਲ ਕਲੈਮਿਟੀਜ਼ ਮਤਲਬ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਫਲੱਡ ਆ ਜਾਣਾ ਅਰਥਕੁਇਕ ਆ ਜਾਣਾ ਸਾਈਕਲੋਨ ਤੂਫਾਨ ਆ ਜਾਣਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਆ ਜਾਣਾ ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੀਗੀਆਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਗੋਡ ਦੁਆਰਾ ਅਨਸਰਟੇਨਟੀਜ਼ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਬਿਜ਼ਨਸ ਰਿਸਕ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਫੀਚਰ ਇਹ ਆ ਵੀ ਇਹ ਅਨਸਰਟੇਨਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਹੁੰਦੀ ਆ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਸਮੇਂ ਰਿਸਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸੈਕਿੰਡ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਫੀਚਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦਾ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਰਿਸਕ ਦਾ ਫੀਚਰ ਇਹ ਵੀ ਅਨਅਵੋਇਡੇਬਲ ਹੁੰਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਅਵੋਇਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਬਿਜ਼ਨਸ ਆਪਣਾ ਕੰਟੀਨਿਊ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਐਲੀਮੈਂਟ ਰਿਸਕ ਵਾਲਾ ਵੀ ਕੰਟੀਨਿਊ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲਿਮਿਟ ਮਤਲਬ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਪਰ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਮਿਨੀਮਾਈਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸਟੈਪਸ ਲੈ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਗੁੱਡਸ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਹੈਜ਼ਿੰਗ ਮਤਲਬ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੇਅਰਸ ਵਿੱਚ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੋਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਸੋ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਰਿਸਕ ਦਾ ਫੀਚਰ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਅਨਅਵੋਇਡੇਬਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮਤਲਬ ਇਹਨੂੰ ਅਵੋਇਡ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਥਰਡ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਇਹਦਾ ਫੀਚਰ ਹੈ ਨੇਚਰ ਆਫ ਬਿਜ਼ਨਸ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੁੱਡਸ ਵੇਚ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ 'ਤੇ ਵੀ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਰਿਸਕ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਹੈ ਜਾਂ ਘੱਟ ਹੈ ਉਹ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜਿਵੇਂ ਮਿਨੀਮਮ ਰਿਸਕ ਜੇ ਆਪਾਂ ਫਿਕਸ ਅਤੇ ਕੌਨਸਟੈਂਟ ਡਿਮਾਂਡ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੇਚ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਰਾਈਸ ਹੋ ਗਿਆ ਸੋਲਟ ਹੋ ਗਿਆ ਫਲੋਰ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਮਾਂਡ ਆ ਉਹ ਫਿਕਸ ਆ ਕੌਨਸਟੈਂਟ ਮਤਲਬ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਰੇਟ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਭਾਵੇਂ ਰੇਟ ਘੱਟ ਜੇ ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਆਪਾਂ ਖਰੀਦਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਮਿਨੀਮਮ ਰਿਸਕ ਜੇ ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ ਫੈਸ਼ਨੇਬਲ ਗੁੱਡਸ ਵਿੱਚ ਡੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਫੈਸ਼ਨੇਬਲ ਗੁੱਡਸ ਵਿੱਚ ਡੀਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਟਵਿੰਕਲਿੰਗ ਆਫ ਆਈ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਦਲਦਾ ਹੈ ਮਤਲਬ ਅੱਖਾਂ ਝਪਕਣ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਦਲਦਾ ਹੈ ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇਚਰ ਆਫ ਬਿਜ਼ਨਸ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਮਿਨੀਮਮ ਰਿਸਕ ਉੱਥੇ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਫਿਕਸ ਅਤੇ ਕੌਨਸਟੈਂਟ ਆ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਵਿੱਚ ਡੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਫੈਸ਼ਨੇਬਲ ਗੁੱਡਸ ਵਿੱਚ ਡੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਫੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਰਿਸਕ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਕੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਰਿਸਕ ਦਾ ਫੀਚਰ ਸਾਈਜ਼ ਆਫ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਵੀ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਆਪਣਾ ਰਿਸਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਊਗਾ ਘੱਟ ਹੋਊਗਾ ਜੇ ਸਾਈਜ਼ ਆਫ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਮੋਲਰ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਰਿਸਕ ਵੀ ਸਮੋਲਰ ਆ ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਮਤਲਬ ਸਾਈਜ਼ ਆਫ ਬਿਜ਼ਨਸ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਰਿਸਕ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਪੈਸੇ ਇਨਵੈਸਟ ਕੀਤੇ ਹੋਣਗੇ ਸੋ ਜਿੱਥੇ ਵੱਧ ਪੈਸੇ ਉੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਸਕ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋਣਾ ਹੈ ਸੋ ਸਾਈਜ਼ ਆਫ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵੀ ਡਿਪੈਂਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਰਿਸਕ ਦਾ ਫੀਚਰ ਹੈ ਵੀ ਸਾਈਜ਼ ਆਫ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੱਧਦਾ ਘੱਟਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਪੰਜਵੇਂ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਵੇਖੋ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਐਜ਼ ਏ ਰਿਵਾਰਡ ਜੇ ਆਪਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਰਿਸਕ ਦਾ ਇਹ ਅੱਗੇ ਫੀਚਰ ਇਹ ਆ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਆਪਾਂ ਰਿਸਕ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰਿਵਾਰਡ ਉਹ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਿਲਦਾ
ठीक है। प्रॉफिट इज़ रिवॉर्ड फॉर रिस्क अंडरटेकन बाय बिजनेस, बिजनेस किसी भी तरह का रिस्क लैंदा तो उन्होंने रिवॉर्ड के तौर पर प्रॉफिट मिलता है। प्रॉफिट तो रिस्क जोड़े गो साइड बाय साइड चलते भी, जे हाई रिस्क आ तो हाई एक्सपैक्टेशन प्रॉफिट की भी आप रख सकते हैं, मतलब ज़्यादा प्रॉफिट होगा जे आप वड्डा रिस्क लिया होया। 6वें नंबर पर देखो जनरल बिजनेस इन्वायरमेंट। जनरल बिजनेस इन्वायरमेंट मतलब जिहड़ा बिजनेस दे विच दो तरह का इन्वायरमेंट हुंदा है, एक तो अंदरूनी इन्वायरमेंट जिहड़ा कि बिजनेस का आपका इन्वायरमेंट हुंदा, एक जिथे बिजनेस लग गया वा उहदे समाजिक इन्वायरमेंट हो गया या उन्होंने बाहरला जिहड़ा प्रभावित करता इन्वायरमेंट, वो भी दोने भी मतलब इंटरनल तो एक्सटर्नल जिहड़ा जनरल बिजनेस इन्वायरमेंट है भी इफेक्ट करता अपने बिजनेस रिस्क नूं। ये भी फीचर है बिजनेस रिस्क का भी जिहड़ा रिस्क की डिग्री है वो डिपेंड करती है जनरल बिजनेस इन्वायरमेंट ते जे जनरल बिजनेस पीसफुल मतलब हर पासे मतलब शांति है इन रिस्पैक्ट टू बिजनेस कम्यूनिटी, ठीक है, शांति है तो फिर अपने बिजनेस नूं वधिया प्रॉस्पैक्टिस मिल सकते हैं। सैकेंड नंबर पर जे हुण मान लो भी डिस्टर्बड आ, जे अपना बिजनेस इन्वायरमेंट डिस्टर्ब आ तो वो बिजनेस प्रोस्पैक्ट अपने इफेक्ट हो सकते हैं, प्रोस्पैक्ट्स मतलब मौके एडवर्सली इफेक्ट हो सकते हैं। 7 नंबर पर कि अपने को कॉम्पीटिशन, तो कॉम्पीटिशन भी बिजनेस रिस्क का एक पार्ट है, फीचर है। तो जी कॉम्पीटिशन ज़्यादा वा तो रिस्क भी ज़्यादा है। हुण जिवें इन्होंने कहा वा एग्जाम्पल थी मोनोपली की, मोनोपली मार्केट वो होंगी जिहदे विच सिर्फ एक ही मार्केट विच कोई भी एक ही प्रोड्यूसर हुंदा है, उही चीज़ां बेचदा है, समान का प्राइस भी वो आप डिसाइड करता है, तो उत्थे रिस्क मिनीमम हुंदा है जिवें कि इंडियन रेलवे। सैकेंड नंबर पर अपने को अगला टॉपिक है कॉजेज ऑफ बिजनेस रिस्क। जिहड़ा बिजनेस रिस्क अपने को आउंदा है सामने फेस करना पैंदा, उहदे किहड़े कारण ने भी किहड़े कारणों करके बिजनेस रिस्क नूं फॉलो अपन नूं करना पैंदा या बिजनेस रिस्क अपने सामने आउंदा है। नैचुरल कॉजेज करके भी बिजनेस रिस्क पैदा होंदे ने, इकनॉमिक कॉजेज करके, पोलीटिकल कॉजेज करके, फिजिकल कॉजेज करके, ह्यूमन कॉजेज ते मिसलेनियस कॉजेज करके। ये सारे कारण ने अपने को जिहड़े कि अपन बिजनेस रिस्क इन्हां लई सामना करना पैंदा है। सो नैचुरल कॉजेज जिवें इहदा नाम सुजैसट कर रहा है, नैचुरल कॉजेज वो ने जिहड़े कि ह्यूमन के कंट्रोल विच नहीं होंदे, मतलब कुदरती आफतां करके जिहड़े भी अपने कोल कुदरत करके जिहड़े भी अपने कोल कारण बनते हैं बिजनेस रिस्क का, उन्होंने आप नैचुरल कॉजेज कहने हैं, जिवें फ्लड करके, फायर ते अर्थक्वेक करके। जिवें इन्हां दे एग्जाम्पल दित्तियां होईयां जिवें सीजनल चेंजिस मतलब मौसम का बदल जाना, जदों एकदम ज़्यादा गर्मी आ जाती है, एकदम ज़्यादा गर्मी आ जाती है या विंटर आ जाते हैं या रेनिंग सीजन आ जाता है, तो वो एग्रीकल्चर तो इंडस्ट्री वाला बिजनेस इफेक्ट होंदा है। सैकेंड नंबर पर जियोलॉजिकल चेंज, जियोलॉजिकल चेंज मतलब भौतिक जी अपनी स्थिति है वो चेंजिस आ जाने, जिमें कि अर्थक्वेक करके मतलब भूचाल आउण करके जिहड़ा ह्यूज लॉस हुंदा बिजनेस नूं ते मैनकाइंड दोनों नूं लॉस हुंदा है। जिवें कि फॉर एग्जाम्पल इन्होंने अर्थक्वेक की गल की है गुजरात दे विच जिहड़ा आया सी। तीजे नंबर पर नैचुरल क्लैमिटीज़ जिवें कि अपने कोल पैंडैमिक्स मतलब महामारियां आ जाणियां, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन हो जाना। सो ये भी नैचुरल कॉज जिहड़े कुदरत के अंडर कॉज ने वो नैचुरल कॉजेज दे विच आउंदे ने जिहड़े कि बिजनेस रिस्क नूं पैदा करते हैं। सो इकनॉमिक कॉजेज करके भी बिजनेस रिस्क पैदा होंदा है। इकनॉमिक कॉजेज किहड़े रिलेटेड ने जिहड़े कि मार्केट विच चेंजिस होंदे ने, मार्केट में किसी चीज़ का प्राइस का चेंज हो गया, डिमांड का चेंज हो गया, रॉ मटीरियल के प्राइस का चेंज हो गया, ये सारे अपने को इकनॉमिक कॉजेज ने। जिमें कि फ्लक्चुएशन इन डिमांड विच फ्लक्चुएशनस हो जानियां, फ्लक्चुएशन मतलब चेंजिस, फ्लक्चुएशनस मतलब किते गिरावट आ जानी, किते ज़्यादा प्राइस वध जाना, किते घट जाना, डिमांड वध जानी घट जानी, वो फ्लक्चुएशन का इकनॉमिक कॉजेज ने। इहदे नाल भी बिजनेस रिस्क पैदा होंदा है। जिहड़ा रॉ मटीरियल आप खरीदते हैं वो प्राइसिस विच फ्लक्चुएशनस हो जानी, किते प्राइस वध जाना, किते घट जाना प्राइस, वो करके भी अपने को इकनॉमिक कॉजेज ने। कंपीटीशन बहुत ज़्यादा हो जाना, मार्केट में डिप्रैशन आ जाना, जदों प्रोड्यूसर द्वारा आपदे ही खर्चे ना निकलन उन्होंने आप डिप्रैशन कहने हैं। तो चेंजिस इन टेक्नोलॉजी में चेंजिस आ जाने, टेक्नोलॉजी एकदम ज़्यादा चेंज हो जानी। सो ये सारे इकनॉमिक कॉजेज ने। थर्ड नंबर पर ह्यूमन कॉज करके भी बिजनेस रिस्क पैदा होंदा है। तो ह्यूमन कॉज किहड़े ने जिहड़े कि इंटेंशनल भी किए जा सकते हैं, इन अनइंटेंशनल भी एक्शन हो सकते हैं। इंटेंशनल मतलब सोच समझ के किए हुए मतलब दिमागी तौर पर सतर्क रह के किए हुए, अनइंटेंशनल मतलब अनजाने में जिहड़े ह्यूमन बींग्स तो किसी भी तरह के लॉस हो जाते उन्होंने आप उन्होंने ह्यूमन कॉजेज कहने हैं। जिमें कि ह्यूमन द्वारा स्ट्राइक्स ते लॉकआउट्स किए जाण, ठीक है, स्ट्राइक्स मतलब धरने लगाए जाने, लॉकआउट्स मतलब अपने कोल फैक्ट्री में लॉक कर देना थोड़े टाइम लई। मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा होने करके इंपलॉयर तो इंपलॉयज़ विच, इंपलॉयर काम देने वाला वा या मैनेजमेंट कह सकते, इंपलॉयज़ जिहड़े कि काम लैण वाले ने। सो उन्होंने स्ट्राइक तो लॉकआउट्स उन्होंने द्वारा कीतियां जानियां, मिसअंडरस्टैंडिंग होने करके भी ह्यूमन कॉजेज ने। इहदे नाल भी बिजनेस रिस्क पैदा होंदा है। अगे रॉयट्स मतलब दंगे पैदा हो जाने, बंद लगा दे ड्यू टू कम्यूनल रीजनस, कम्यूनिटी रीजन करके मतलब समाजिक कारणों करके इस तरह के रॉयट्स हो जाने, बंद लगा दे दिते जाने, ये भी ह्यूमन कॉजेज ने। अगे
लॉसिस हो जाने डिसहोनेस्टी होने करके इंपलॉयज़ ते कस्टमर ते इंपलॉयज़ की डिसहोनेस्टी मतलब ईमानदारी ना होने करके भी ह्यूमन कॉजेज़ पैदा होंदे ने। अगे लॉसिस नैगलीजेंस मतलब लापरवाही करने नाल इंपलॉयज़ की लापरवाही करना भी ਜਿਹੜੇ कॉज पैदा उन्होंने आप ह्यूमन कॉजेज़ कहने। सो चौथे नंबर पर देखो फिजिकल कॉजेज़ किहड़े ने बिजनेस रिस्क के। फिजिकल कॉज वो ने जिहड़े कि मैकेनिकल ते टैक्नीकल प्रॉब्लम्स नाल पैदा होंदे ने। मैकेनिकल मतलब मशीनां रिगार्डिंग प्रॉब्लम नाल, टैक्नीकल दिमागी मतलब इन्वेंशनस नाल या किसी भी तरह की टैक्नीक्स नाल जिहड़ियां प्रॉब्लम्स पैदा होंदियां उन्होंने आप फिजिकल कॉज कहने हैं। जिवें नवीं इन्वेंशनस न्यू इन्वेंशनस मेक द एग्जिस्टिंग मशीनस आउटडेटेड बिफोर दिस एक्सपैक्टेड लाइफ। जिन्ने समय लिए आप मशीन वरतनी सी उदों पहलां वो पुरानी हो जाती है, आउटडेट हो जाती है, किहदे करके नवीं इन्वेंशनस करके। टैक्नीकल प्रॉब्लम है, मैकेनिकल प्रॉब्लम्स वो ने जिवें कि मशीन में किसी तरह के डिफैक्ट्स आ जाने, सिचुएशन इस तरह की पै जानी जिहदे मशीनरी में क्रीप आ जाना, टैरीबल रिजल्ट्स जिहदे नाल निकलने, एक्सीडेंट हो जाने, वो फिजिकल कॉजेज़ आउंदे ने। दैन पोलीटिकल कॉजेज़ देखो, पोलीटिकल कॉजेज़ वो ने जिहड़े कि सरकार दीयां पॉलिसीज़ बदलण नाल आपां नूं कारण फेस करने पैंदे बिजनेस रिस्क दे। जिवें सरकार दीयां पॉलिसीज़ बदल जाणियां, लाइसेंस लैंड रेट टैक्स लाउण रिगार्डिंग इंपोर्ट ते एक्सपोर्ट। इंपोर्ट मतलब बाहरले देशां नूं समान मंगाउणा ते एक्सपोर्ट मतलब बाहरले देशां नूं समान भेजना। अगे चेंज इंडस्ट्रीयल पॉलिसी विच हो जाने, जिवें अपने कोल न्यू इंडस्ट्रीयल पॉलिसी 1991 आई सी। तीजे नंबर ते चेंजेस इन पोलीटिकल सिस्टम एंड आइडियोलॉजी, विचारधारा जिहड़े कि मतलब पोलीटिकल पार्टी चले उहदी की विचारधारा वा ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ भी ਆਪਾਂ ਨੂੰ पोलीटिकल कॉजेज़ ने जिहदे नाल बिजनेस रिस्क पैदा होंदा है। 6वें नंबर ते कि अपने कोल मिसलेनियस कॉजेज़ वो ने जिहड़ियां कि उपर कॉजेज़ नहीं मैंशन होए वो मिसलेनियस कॉजेज़ विच आउंदे ने, जिवें कि इनएफिशिएंट मैनेजमेंट जिहड़ा बिजनेस दी अपने कर रहे ने वो मैनेजमेंट प्रॉपर नहीं कर रहे, और जिहदे नाल कि अपने कोल रॉन्ग प्लैनिंग ते डिसीजन मेकिंग हुंदी है, जिहदे नाल आपां इनएफिशिएंट तौर ते अपने बिजनेस नूं सही तौर ते मैनेज नहीं कीता जांदा ते ह्यूज आपां नूं लॉसिस हुंदे बिजनेस नूं। सो ये सीगा अपने कोल मिसलेनियस कॉज, ये सीगा अपने कोल टॉपिक स्टूडेंट्स अज दा बिजनेस रिस्क दा मीनिंग आपां कीता है, करैक्टरिस्टिक्स कीते ने ते आफ्टर दैट आपां इहदे कॉजेज़ कीते ने। आई होप दिस वीडियो विल बी हैल्पफुल फॉर यू। हैव ए नाइस डे।